yes, no. So no can't say. मतलब yes होगा तभी बोल सकते हैं. Yes, okay. But I'm unable to see any one of you. By the way, like in my screen, I am able to see Manya. I'm able to see Himanshu. Obviously, I'm pretty visible to me as well. So mm, I think we should meet. And when we say meeting with the people who has done well, who is living their life, what we have been aspiring, I think we should be on the camera. That will be a better for our discussion, interaction. So, Himanshu, I think we should start and let people join and Yeah, sir. slowly. Sure. Sure, sir. Yeah, because already we are 8:05, so we decided to start at 8, 5 minutes late. लॉ वाले लोग हैं टाइम से काम करते टाइम से शुरू करते टाइम से खत्म भी करते हैं सो वेलकम टू दिस सेशन सेशन हैज वेरी सिंपल एजेंडा बिकॉज कुछ के बोर्ड चल रहे थे कुछ लोग 11 से 12th में जा रहे थे एंड देन सडनली यू विल फाइंड अभी तक तो सब लोग कह रहे थे बोर्ड देख लो ठीक से कर लो एंड इट इज इम्पोर्टेंट टेक केयर ऑफ द सब्जेक्ट्स मार्क्स इंपॉर्टेंट है एंड सडनली यू विल फाइंड अब लोग बोल रहे होंगे अब देख लो क्लैट जो करना है उसके बारे में तुम्हारा क्या प्लान्स है. So we thought of to have a two kind of thing. Obviously, the classes are going on, so you must be attending your classes at respective centers. But we had a privilege. अब जैसे बोलते हैं ना कि we have a privilege to have Manya in today's session. Manya is studying in NLS Bangalore. और मुझे लगता है कि NLS का नाम तो सबने सुना ही होगा. And Manya couldn't get place in hostels. थोड़ा भीड़ था ऐसा था. And now I'm finding her even walking into the amphitheater and some field kind of stuff. So I'm able to see. So good to see for the session she opted out to come out from the room and then being in the session and standing be in the field. So probably that's a commitment what we see from her side. So thank you, Manya. Thank you very much. Uh, That is, yeah. and uh, this is what happened. Like every year, we keep coming with a newer generation. When you guys were there, we had a different excitement. क्या कर रहे हैं, कैसे करेंगे? And we are full into seeing how you guys been doing. But जैसे तुम लोग पास आउट हो जाते हो, फिर एक नया बैच आता है, and then we start thinking, अच्छा ये कैसे करेंगे, इनके लिए क्या कर सकते हैं? So idea is we have asked kids who are going to write their CLAT, obviously CLAT 27 as well as CLAT 28. 27 essentially the people who are moving to 11 to 12. So roughly they have like 8 months kind of stuff with them, and then the rest people who are just thinking to come towards a domain called CLAT because 10th से 11th में आ रहे हैं LST span का program जो 2 years के होते हैं. So those kids are also there. So mm, best will be when the we can get the question from the kids. But for the opening remark, I really want you to share your a bit journey in the time, like how you started, which school you are from, what subject you had, CLAT कैसे तुम्हें समझ में आया, and then during the CLAT what had happened. So probably 2-3 minutes of initial remark and probably some question will come out from that thing as well. So over Yeah, to yeah. you, and thank you very much for finding out time, and it's always great and proud to see our kids being an analyst, studying, coming and being in touch. That's also a very good great thing for us. Yes, so thank you, sir, for having me here. So, hi guys, I am Manya Agarwal. I was in the LST Span 24 batch. So, my CLAT was in 2024. And I was a student at CL Noida. And I studied from Manav Rashtra International School, Noida. So I had uh, thought of doing law since like the ninth grade. So like, a lot of things inspired me, media preferences, my family itself. So many factors played into me choosing law as a career.
And then when I reached 10th, so I was pretty clear that I want to do CLAT as my entrance exam and come to NLS. That's what everyone dreams of. So I joined CL for that. So I was in the 2 year program. In CLAT 2024, by God's grace, I got AIR 35, and now I'm in NLS Bangalore. Um, Regarding my preparation, I'll be completely honest with you guys. It was not a easy journey. It was filled with so many ups and downs, and like more downs than ups. But uh, it was still a very fulfilling experience when you reach there, right? So throughout my entire journey, my teachers helped me out a lot. Like specifically Pulak ma'am, Ramanuj sir, Varun sir, those were the constant supports in my life. And then mainly what I did was practicing a lot. So I know like everyone says practice, 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 but then we're like practice से कुछ नहीं हो रहा, practice ही कर रहे हैं, कुछ fruit नहीं निकल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. And like, even it happened with me also, trust me. I asked so many people, kya karu, and they are like practice, practice, practice. But at the end of the day, it's the main thing that matters. You know, do your mocks, complete your assignments on time, do mock practical sets, do specific section sets. That's what really helps. Be on top of your GK and things like that. Regarding my school and CLAT balance, what I did was, so 11th grade, I used to devote half time to both the things, to my school also and to CLAT also. So I was able to get like 8 hours of study in my 11th grade. And from that 4 I used to do school homework, projects and stuff. And then the other 4 I used to do CLAT prep. Then when I came to grade 12, I started devoting more time towards class. So from that initial 8 hours, I used to give only like 3 hours to school and then 5 hours to class. And usme mocks, mock analysis, other practice, GK, those things I happened in the 5 hours. Then after my half yearly exams for grade 12 got over, I stopped going to school. So like I just went like once a week to school just to like get my attendance on track. And उसमें, so by going to school just one day, I used to get like around 12, 13 hours completely for CLAT prep. So I did not even touch school after my half yearlies in grade 12. And उसके बाद like after CLAT, so you have ample enough time to study for your boards. So it doesn't really matter if you cover your syllabus in those 2, 3 months, because though that's the crucial time you really need to focus on your CLAT prep. That's what like determines if you get into a good NLU or not. So that's pretty much my journey. And if you guys have any questions. So I think the biggest thing you gave the hours what you have clocked, and that what it tells. I always see a CLAT is all about nurturing perfection, and it is just like it is not like an intellectual game. It is not like I'm very much uh, great in any subjects. I'll do wonders in CLAT. CLAT is all about can I make things happen each and every time, and वही हुए कि मतलब out of 120 question, if I can do it 110, reach out to be closer to 100. Obviously, I want to be a topper, so I'll go obviously 115. Probably I get 111 score. But it happened when I do it again and again. क्योंकि ये लीव करने का है नहीं. I can't leave the class. It's similar like क्रिकेट में बोलते हैं ना कि the best of the batsmen also they practice before coming to the matches. तो कहीं ना कहीं वो perspective तो रहता ही रहता है. तो so and that's what the Mania has a positive side of it. She was able to figure it out वो timeline क्या है वो hours क्या है वो priorities क्या है. So now the floor is open and I'll be requesting if you're really asking question you should be on the camera because understand the जो जो बोलने आया है वो उसके पास भी तो choice है मतलब that person would have switch off the camera and then spoken like a radio प्रचारण जैसा हो जाता है. बट वी वांटेड कि लोग थोड़ा से इंटरेक्टिव हो एंड जो लोग कैमरा पे आएंगे मतलब ऑब्वियसली सरप्राइज गिफ्ट व्हेन यू कम टू द क्लासेस टुमारो. तो हिमांशु जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कल इन सबको एक ना सरप्राइज गिफ्ट मिलना चाहिए मेरी तरफ से. वी नीड टू मैनेज. तो अभी एक ले सकते हो लास्ट में अगर कुछ ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए सेकेंड लेयर के गिफ्ट लेंगे हम लोग.
Okay, up to you guys. Mane is there, and she's able to take up your questions. Best one if you can speak up. ये chat नहीं चलेगा. I'll see कि uh, speak. कोई raise hand. It's not order. You just go ahead. Arnib, can you just switch on your audio and speak? So, good evening, everyone. So, I wanted to ask, like, in your initial 5 hours, which you used to give in your CLAT preparation for in the starting of your 12th, how would you divide your time? Like the 5 hours, what things would you do daily? Yeah, okay. So, firstly, one thing you have to do daily is GT. That's something you cannot compromise on because if you leave it, it gets built up and then it's a lot to cover. Trust me, I have done that. I know how it feels. So, वो cover up करना is very difficult. Secondly, it's not like I used to give mocks daily. Mocks I used to give like once in 2 weeks or once in 1 week. What I spent time was on like after the mocks, you really need to analyze your notes. Where have you gone wrong? Why have you made that mistake? And then you need to talk to your teachers, come to the center or talk to them online and figure out why is it happening and how you can resolve it. And after you get a solution for it, then you practice through that solution. You apply it to other sectionals or different mock sets you can do. You can also redo your mock, like previous mocks you can redo. So that's what I used to do. If you think like practice questions come है, तो पहले के mocks उठा के do उसके ही section. But do it with a timer. So that's what I used to do and figure out what's your weakest point. So my logical reasoning was very weak. So logical reasoning, at least two passages I did every day. You have to, so on that I was consistent. So that you need to figure out what you need to work on. That's like a personal thing, but that's mostly what I did in the 5 hours. And like any ऐसा कि रिवीजन ऑफ एनी सब्जेक्ट जैसे लॉ है तो लॉ में टॉट्स अगर हमें हुआ है तो फिर टॉट्स हाँ, कोई डेली बेस्ड रिवीजन ऑफ एनी सब्जेक्ट इज मतलब डेली बेसिस पे मैं इतना नहीं करती थी. आई वॉज मोर लाइक, मतलब मेरा लॉ वाला थोड़ा क्लियर हो गया. So the thing is, you can't depend on outside knowledge. So what is given in the passage, उतना ही आपको रेफर करना. It makes your reading of the passages easier. So it's not like कि daily you have to revise the same concepts. वो उसके बिना भी हो जाता. But then again, if you are weak in the legal part of it, then you will have to revise it daily. Again, subject dependent. So logical reasoning theory, I had to do every like alternate day. थोड़ा बहुत. ओके थैंक यू सो मच No problem. How did you do GK? So GK ka, it's a, I think you guys would have gotten Manthan. I used to do that. And secondly, you can, get like just Google search most important topics for this month. And you get entire lists of GK topics. And then you pick out each topic and then you research about them. And you note down relevant details about it. Like maintain a copy or something. And उसमें you keep writing those facts, like very important things. So that copy would be your revision material as well. So like do it hand to hand. And then class में you will be doing GK, तो उधर से भी you'll get to know what are the important topics. Newspaper reading again. So like read the newspaper, you get the relevant topics. So that's how pretty much I did GK. And how did you manage school plus coaching plus like self-study for like this long? Yeah, so the thing is, I was like, I had made a schedule. So I luckily am able to follow a schedule. Like I know a lot of people can't, which is completely fine. Again, whatever works out for you. So I'm more of a early bird. So like I can study in the morning, wake me up at like 5 and I'll be able to study. At night, my brain stops functioning. So I'll have to stop studying by 12. उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ घुसेगा ही नहीं. So you need to work out your schedule in that way. When is your most productive time to study? And then like school mein, so again, if you're attentive in your school ke lectures, you will not have to focus much at home also. घर पे मेरा major homework ही होता था. And like I can see someone has written like which subjects I had chosen. So I was in the humanities stream and subjects particularly I had political science, English, legal studies, applied maths and mass media.
So the thing that required the most practice was maths. So homework for other subjects and then maths. तो वही continuing वो करती थी ऐसा, मतलब हाँ. और क्लैट का जो टाइम डिवोटेड था उसमें सिर्फ क्लैट क्लैट, उसमें स्कूल का सोचना भी नहीं है. Because like school ka exams are not really that important considered. Even board maybe you need to only get like 40% to like just like consider yourself pass and get into an NLD. So it doesn't really matter that much. So, how Yeah. did you manage quant with the time that is like 20 minutes respectively? Okay. Yeah, so that comes from practice. One thing about me, my maths was touchwood good. So I personally did not have that struggle and like too much struggle in the quant section. I was able to do it. It's all about like how easily, how quickly you're able to comprehend and get like what you are supposed to do in the question. That comes from practice only. And like if you're facing problems in the initial part of it, then I would suggest you go and revise grade 8 and 10th में जो you have done profit and loss ratio वगैरह, do those exercises, those help. Like that's pretty much the similar questions you get. And then yeah, the sheets you get from the coaching itself, even those are pretty easy questions. So you get an idea what to do. And Can I it's add yeah. to the maths part? Hmm. Sorry? So see, I'm just adding something in the quant part of it. So how to really ace that quant part of it. एक तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए बिकॉज क्वांट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोग डरते हैं एंड देयर वेयर यू हैव टू बी गुड एट इट बिकॉज द इफ रियली वांट टू बी इन टॉप लिस्ट ऑफ इट, बिना मैथ्स के नहीं होगा. मैथ्स की अच्छी बात क्या है, इसको ओनली 2-3 चैप्टर्स, परसेंटेज, then SICI probability discount, ratio, some average, at max time speed distance and time and work kind of, not more than that. So roughly the questions comes from this. तो किसी ने बोला मैथ्स कैसे इंप्रूव करें, एंड इवन आई हैव बीन टीचिंग मैथ्स फॉर लास्ट 16 इयर्स. वो सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, मतलब हाउ टू इम्प्रूव मैथ्स. बट आई रियलाइज वन थिंग, आई कैन लर्न क्वेश्चन स्लोली, आई विल बिकम बेटर एट मैथमेटिक्स. तो जो सवाल मुझे नहीं आते, मुझे कोई तो बताएगा. सो आई नीड टू रीच आउट टू द पीपल. सो बेस्ट विल बी विच क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, रीच आउट टू द फैकल्टी एंड से कि ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे कुछ समझ में नहीं आया. आई थिंक दैट्स वेयर द फैकल्टी रोल्स कम इनटू पिक्चर. बिकॉज मैं आपको दो चार क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा, देन आई एबल टू नो क्या तुमको नहीं आता. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो what you don't know, and that's where the coming to the faculty with question is very very important. So you have a lot of maths faculty. देखो अच्छी बात क्या है, although you find Navneet sir is there teaching maths to you, but the good part is you have a lot of maths faculty into the system. क्योंकि कैट भी हमारे यहाँ होता है, आईपीएम भी होता है. अब मैंने मैथ्स तो तुम सबको नहीं पढ़ाया, बट आई कैन बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. तो किसी दिन आगे हिमांशु से टाइम लिया कि भाई मुझे कौन मैथ्स के फ्री है, अमित सर है, पुरु है, मैं हूं, नवनीत है. सो वी गॉट 4 मैथ्स फैकल्टी. करना कुछ नहीं है, अपना मॉक पकड़ना है, सेंटर पे आना है, उस टीचर के सामने बैठना, बोलना ये आप पढ़ो, क्या आपको समझ में आया, मेरे को तो नहीं समझ में आया. देन दैट्स वेयर द डिस्कशन स्टार्ट्स एंड देन स्टार्ट लर्निंग ऑफ इट. सो हेल्प, दैट्स वेयर रियल लर्निंग स्टार्ट्स. खुद बुरा लग के कुछ नहीं होगा कि मेरे को तो आता नहीं, कुछ नहीं आता. मेरे को भी मैथ्स नहीं आता, मतलब बाय द वे आई एम टेलिंग, मैथ्स का जो ग्रैंडनेस है ना, आई नो फ्रैक्शन ऑफ इट. और वो फ्रैक्शन भी जब बोल रहा हूँ तो बहुत ही स्मॉलर बेट होगा, बिकॉज मैथ्स इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट. सो इवन वेन वी टीच मैथमेटिक्स, वी आर ऑल्सो द सेम काइंड ना. तुम थोड़ा हमसे और कम जान, थोड़ा सा ही कम, बट द फ्रैक्शन में बात बराबर ही आएगी. सो ट्राई टू अप्रोच फैकल्टीज फॉर मैथमेटिक्स. Don't restrict yourself only to Navneet because he's there. He can be also reached out. But you have a lot of faculties around. तो आप सेंटर पे जाओगे ना तो मैथ्स की फैकल्टी मिलना आसान है, बाकी में डिफिकल्टी हो सकती है, बट मैथ्स में नहीं होगी. जस्ट टू ऐड टू दिस, आई माइट हैव टेकन टाइम, बट आई थॉट आई शुड गिव दिस मैसेज टू ऑल. मैंने, तूने मैथ्स सवाल पूछे मुझसे क्या कभी? Yeah, sir. तुमने मुझसे मैथ्स के सवाल पूछे थे?
हाँ जी सर। अब देखो मैंने पढ़ाया नहीं, क्लासेस में, लेकिन इसने पूछे। गुड है, थैंक यू। तूने बोलती ना बोलती तो मेरे को बहुत दिक्कत होता। नहीं 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 सर, आपने हमारी एक आध क्लास ली भी है पहले। अच्छा, मैंने ली भी है। हाँ हाँ। ओके, गुड गुड। ओके, क्वेश्चंस अगेन, लॉट ऑफ रेज हैंड, अनम्यूट एंड स्पीक, मतलब देयर इज नो ऑर्डर, आई नॉट मॉडरेट, अनम्यूट एंड Yeah, स्पीक, so कोई ना कोई बोल रहा है। my doubt was कि what's a safe mock score for only 9 months for CLAT, and like how do you increase your speed, because that's something that I can't do somewhat. I don't know why. So please help me. Yeah. Okay, so mock scores, my ideal mock score for 9 months, like you should be around like 60, 70. But then again, I am the worst person to recommend about mock scores. My mock scores were a zigzag graph. You will not find a straight line anywhere. It was always a zigzag. Matlab, I'll tell you, the mock I gave right before CLAT, usme I got like 70 marks. So, very dicey situation with mock scores. But ideally, what my batchmates used to get, they were around like 60, 70 की range में at 9 months. And sorry, what was the second question? I forgot. How to increase speed, like while हाँ, the speed. messages. Hmm. So the speed is like it comes with practice only, right? So with time you'll get to know कि अच्छा passage में ये relevant है, ये relevant नहीं है. So you'll know when to skim, when to read more clearly. So like you'll figure that out along the way. Depends on how many passages you're doing. So like for me with logical was पहले तो I used to spend a lot of time. I read like each and every word, every line. But then with time you get a hang of like you do so many questions, so many passages. You get used to कि अच्छा ये इरेलीवेंट है, ये मेरे को ज्यादा इस पे ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आई स्किप ओवर दिस पार्ट। ऐसा आगे कुछ क्वेश्चन आएगा, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू इट एंड सी। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अनदर थिंग यू कैन ट्राई इज read the questions first and then go to the passage, so you'll know what is relevant. So that's what you'll focus on when you're doing your mocks and passages in general. Yeah, So that's how you, yeah. yeah. So one last doubt. Actually, this is something that I struggle with a lot. Like, how do you actually manage bad days? Like days when you're feeling very down, you're not feeling very motivated, and you are not very like productive. Like, how do you Hmm. manage those days? Yeah, so honestly speaking, on those days just leave like for 1 hour. Don't do anything. Do whatever you want. Watch TV, watch Instagram, whatever you want to do. Go watch a movie, go out with friends, eat good food. Like, I know it's a very overwhelming process. I too had a breakdown daily. Like, I had like 15 minutes devoted कि इतने में breakdown करना है, उसके बाद पढ़ाई करेंगे. तो वो daily मेरा थोड़ा clean up होता रहता था. But like, if you're like sort of person की, एकदम bottle up हो जाएगा and then I'll get it done with. वो जिस दिन होगा ना उस दिन लीव इट 1 hour 2 hour जस्ट लीव इट इट्स ओके 2 घंटे में कुछ नहीं होगा इट्स फाइन डू वट एवर यू वॉन्ट उसके बाद बट लाइक you need to feel motivated that's important talk to your parents or your friends or your teachers whoever makes you feel better talk to them यार मेरे से नहीं हो रहा अब मैं क्या करूं बताओ talk to people who will actually motivate you and not people who will pull you down अब ऐसा मत करना कि तुम्हारा कोई दोस्त भी डिप्रेस है तो तुम दोनों आपस में डिप्रेस होकर बात कर रहे हो और डिप्रेस हो जाओगे कोई मोटिवेटेड इंसान होगा उससे बात करना जो तुम्हें एक्चुअल चाहता है कि तुम आगे जाके कुछ कर लो टॉक टू सच पीपल नेगेटिव लोगों से बात मत करना प्लीज दे विल ओनली पुल यू डाउन उन्हें बहुत मजा आते हैं ये सब करने में वो सब मत करना टॉक टू पीपल हु विल एक्चुअली पुश यू अप लाइक पीपल हु विल टेल यू कोई बात नहीं अभी हो जाएगा सबसे हो रहा है इट्स लाइक एवरीवन इज इन द सेम बोट बट द थिंग इज सबका वो वाला फेज अलग अलग टाइम पे आ रहा है इट्स नॉट कि सब लोग एक ही साथ डिप्रेस हो रहे हैं लोग अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार सब तो बहुत कर रहे हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा सो बी लाइक बी क्लियर इन योर हेड कि सबके साथ हो रहा है इट्स ओके आई गेट थ्रू दिस आई हैव टू गेट थ्रू दिस मुझे करना है क्लास बट लाइक यू कैन टेक अ रेस्ट ऑफ 1 2 आवर गेट बैक टू इट और ये पूरे दिन की छुट्टी ले लो डजेंट रियली मैटर एक दिन में कुछ नहीं हो जाए इट्स फाइन I had two doubts. I'll ask my first doubt, right? First is I wanted to ask what should I focus on while giving sectional tests or topic tests? Like what should I focus on while giving them? मतलब फोकस ऑन एज एन क्वेश्चन पे या किस No, as in like if for example I'm giving a legal ka sectional, so like what should be my mindset while giving the sectional? What should I do after giving the sectional? I want to ask. ओके ओके या
So while you're giving the sectional, be clear. Like your aim should be, I need to get जितना भी time में मैं कर पा रहा हूँ initially, that I should get whatever I'm doing right. पहला आइडिया तो ये होना चाहिए. With time, अभी जैसे you'll progress in your preparation, then you'll get a hang of things, you'll get a hang of time, then you'll slowly be like, okay, अब इस टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, सही करने हैं, तो वो करेक्ट एक्यूरेसी एंड टाइम का रेशो वो बैलेंस करके चलना. After you give the mock or the sectional, it applies for both these things actually. You sit down and you open that mock, उसका आंसर की या sectional and उसका आंसर की. Check कहाँ पे गलत हुआ. And then see why did it go wrong. So like maintain a notebook or a diary and उसमें write कि इस टाइप के क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी. वो गलती क्यों करी? लाइक पॉन्डर हो गई कि टाइम कम था, या मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, या मैंने ओवर थिंक कर दिया, या मुझे पता ही नहीं था कि ये वाला क्वेश्चन करते कैसे हैं. You get a list of reasons, then you see कि ये common mistakes हो रही है, like over like 2-3 marks you see कि ये गलत हो रहा है, ये बहुत common repetitive factor mistake हो रही है. Then you go talk to your teachers कि मैम या सर मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, how do I solve it. You get an idea, so that this analysis has to happen regularly. And it's not like कि आज मॉक दिया है and then 10 दिन बाद उस मॉक का एनालिसिस कर रहे हैं. वो साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, अदरवाइज यू फॉरगेट कि तुम्हारा उस टाइम मॉक देते टाइम क्या माइंडसेट था. सो यू नीड टू नो कि व्हाट माइंडसेट यू हैड व्हाइल गिविंग दैट. सो वो एनालिसिस शुड हैपन विद टाइम as you give the mock or the sectional. It applies for both. Again. Thank you. The other question was, it's personal to me, I think, that I struggle in English a lot. Like while I read the passages, I get lost at like what is the inference, what is the tone, and like what's the overall claim of or the theme of the Mm-hmm. passage. So like how do I fix Yeah, that? yeah. So I had the same problem. Logical reasoning mein I had this problem. So what I did was, um uh, must have gotten the logical reasoning वाली books. I'm not sure. वो जिसमें theory भी थी ना, Yeah. सारे argument, claim Yes, वगैरह. yes. Read those and उसके साथ के जो questions है ना वो करो. Even though वो not they're not clad pattern वाले specifically. You get an idea what they're trying to say. And then I made this list. So what I used to do was, you need to eliminate options, right? There should not be too broad, too general, too narrow, too extreme, completely irrelevant. So वो लिस्ट मैंने लिख के अपनी स्टडी टेबल पे चिपका ली थी. तो जब भी मैं मॉक या कुछ सेक्शनल देने बैठती थी ना, तो आई यूज टू गो ओवर दैट लिस्ट कि अच्छा हाँ ये ऐसा है आर्ग्यूमेंट, इसे निकालो, ये ऐसा है ऑप्शन, इसे निकालो. So that's how you develop a habit, and then you need to be clear on what these things actually mean. So वो सब तो passages की practice, and ask your teachers, they'll help you out. You'll have particular sessions devoted to it. कि आज की 3-4 क्लास में सिर्फ हम यही डिस्कस करेंगे कि टोन क्या होता है, सिर्फ आर्ग्यूमेंट क्या होता है. So with that practice, with that habit, as many questions you do, you develop a habit of recognizing. So that's, I guess, one thing that comes from, again, consistent practice. So Too that much like practice did you and have any strategy for reading the passage? Like if you're reading the passage, did you think of like do this or like what do you do when you read a passage? see, again, like I was saying earlier, कि initially तो you will be like मुझे पूरा passage पढ़ना है, वो पढ़ना भी चाहिए, उसके बिना you won't learn. But then over time you will develop कि अच्छा हाँ, ना intuitive एक feeling develop हो जाती है कि ये relevant है, ये relevant नहीं है, तो मुझे उस पर ज्यादा focus नहीं करना. And again, to help that, you can try read questions first and then go to the passage. So you'll know कि you'll have an idea कि हाँ मेरे को इस चीज पे focus करना है, इससे related एक question था. So that's something you need to figure out. That's again a very personal thing. People are like कि मैं पहले passages करूंगा फिर questions करूंगा, या पहले questions करूंगा फिर passage पे जाऊंगा. So you need to figure out what works for you. That's what's important. Thank you. Like my question was what to avoid during this preparation, as we got students of class 12 got only 8 months for the prep. So what things we need to avoid for this during this prep? Avoid में यार, मतलब avoid in what sense? Like, थोड़ा सा can you Like which elaborate? might cause a hindrance in our preparation. एक तो firstly एकदम be very away from like irrelevant distractions. सबसे बड़ी तो वही हिंड्रेंस होती है. फालतू के दोस्त वगैरह उस सब में मत पड़ना. अभी फोकस ऑन योर स्टडीज. Secondly, major thing you need to avoid. Okay, so
आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। मेरे पे फोन नहीं था 11th 12th में, तो मेरा वॉज कम्प्लीटली फोन फ्री प्रेप। तो मेरा थोड़ा उसमें काफी वो निकल जाता था, डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट कट आउट हो जाता था। सेकेंडली आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस के अलावा भी बहुत हिंड्रेंस कॉज करता है, वेस्टिंग टाइम एंड प्रोक्रास्टिनेशन, वो नहीं करना है। So like like paste something on your wall, like whatever you keep constantly looking at, do not waste time. Or something like go study, or like something like motivates you, like you see it and you're like अच्छा नहीं, अच्छा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, ये सब करना पड़ेगा। और हिंड्रेंस में यार, प्रेप में ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा, ये ना एक्सटर्नल फैक्टर से आता है। एज लॉन्ग एज यू आर इंटरनली डिटरमाइंड कि यार ये तो करना ही है, तब तो फिर कुछ भी हिंड्रेंस है नहीं होगा। मतलब आई होप आई एम मेकिंग सेंस। You're not only making sense, you are making a true sense, and I'm so happy to hear. गिरी सर, आपको क्या लग रहा है मान्या को सुन के? Sir, it's a music to ears that at such age, such a level-headed individual who can give this kind of a guidance. Super. Wonderful, गॉड ब्लेस यू मान्या। really. ये Thank you. क्लैरिटी चाहिए। मैं एक एक बात कहता रहता हूँ कि हाउ नॉट टू मेक मिस्टेक्स, सो मिस्टेक्स आर वेरी टॉर्चरिंग फॉर अस ना। मुझे आता है, मैं गलती करता हूँ यार, तुम तो जीवन में कभी भी सक्सीड नहीं करूंगा मैं तो। आई नो आई मेक मिस्टेक्स, दैट्स आवर बिगेस्ट हिंड्रेंस फॉर आवर सक्सेस। तो उसका एनालिसिस किया क्या क्या हो सकता है। तो एक बात मैं बोलता हूँ, राइट योर मिस्टेक्स, व्हाट मान्या वाज सेइंग आल्सो। क्वेश्चन लिखो, तुम क्या गलती कर रहे हो वो लिखो। उसका नेक्स्ट लाइन क्या है मेरा, दोज हु राइट मिस्टेक ऑफ देमसेल्फ, देयर सक्सेस स्टोरी रिटन बाय अदर्स। जो लोग अपनी जीवन में अपनी गलतियां लिख लेते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी लिखने वालों की लाइन लगती है। एंड दैट्स व्हाट प्रिसाइजली व्हेन मान्या वाज सजेस्टिंग, I was just connecting, yeah, this is what, and it is important. Write down your mistake. There has to be a diary or copy, which tells, यार मैथ्स का ये टाइप का क्वेश्चन होता है, आई डू कैलकुलेशन मिस्टेक, राइट इट डाउन। दिस काइंड ऑफ पैसेजेस व्हेन आई रीड, आई इन्फर डिफरेंटली। लिखा कुछ और है, मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ, राइट इट डाउन एंड देन गो टू द फैकल्टीज एंड देन शो इट टू देम कि यार सर देखो बार बार हो रहा है, दिस द पैटर्न आई एम एबल टू फाइंड आउट। आई थिंक दे विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर। गुड है। चलो, मतलब मेरे बीच में थोड़ा आ जाता ना, तो हम लोग तो अभी भी एक्साइटमेंट आ जाता है, somebody talks senses about. Good, good. Go ahead. Questions. I actually wanted to ask, like it's discussed how current affairs GK is very important, but sometimes GK questions correlate to static GK, like a question about the UN. Then it takes over to when was this certain UN agency established and where is it located, the headquarters. So how do you study both current affairs and static GK? See, the thing is, static GK is important because, like, when you will be doing dynamic GK also, ना, when you are researching on topics, तब उसमें जो तुम notes बनाओगे, उसमें you have to write static GK part. So अभी कुछ UN ने करा, ठीक है, पीस कीपिंग मिशन भेजा कुछ, उसमें when you open that news article or anything, उसमें लिखा होता है कि UN was established in this year, this is located here, इसमें इतने members हैं। और अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी नहीं लिखा है, तो उस टॉपिक के बारे में जब रिसर्च करोगे ना, तो उसमें आता ही है वो। So it's like when you're constantly repeating those facts, no, you remember such things. तो स्टैटिक जी के कवर हो जाते हैं, उसे अलग से जाके करने की जरूरत नहीं पड़ती। When you're researching for dynamic, static अपने आप नोट्स का पार्ट होता ही है। So that's how you cover. उसको अलग से कि मैं 1 घंटा स्टैटिक ही करूंगा, वो करने की जरूरत। एंड आप जब आपने कहा था आप मंथन के साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, तो आप न्यूज़पेपर को एक सर्टेन तरीके से फिल्टर करते थे, और डिड यू रीड द होल थिंग? नो, न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना। So like you don't need to know state based news, like state specific politics वगैरह, वो सब नहीं। बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब जानने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स में भी मेजर थिंग्स लाइक टेनिस का एक वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, ऐसे से। बाकी मेजर यू नीड टू नो इंटरनेशनल न्यूज अफेयर्स एंड इंडिया में जो भी पॉलिसीज और वो सब आ रही है, वो सब, दोज आर द मेजर थिंग। सो आई थिंक ये पता नहीं आपके जीके क्लास में भी बताया हुआ होगा सर ने या मैम ने, कि लाइक हाउ डू यू रीड द न्यूज पेपर। सो लाइक थिंक अबाउट कि मतलब अगर मैं दिल्ली में हूँ, तो
वो एक क्लैट का पेपर पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो रहा है, तो दिल्ली स्पेसिफिक न्यूज आइटम किसी को क्यों ही पता होगा? व्हाई वुड अ तमिलनाडु पर्सन नो कि दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ऐसी इरेलेवेंट चीजें यू कैन सॉर्ट आउट, तो वो पूरा न्यूज़पेपर का 2-3 सेक्शन तो ऐसे ही निकल जाता है। एडिटोरियल पढ़ना है, एडिटोरियल इज वेरी इंफॉर्मेटिव, एडिटोरियल में आपकी रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। वो संडे को ऑपेड आता है, वो भी पढ़ना है, वो भी दे आर गुड आर्टिकल्स। साइंटिफिक डेवलपमेंट कुछ बहुत मेजर हो रही है, या फिर स्पेस रिलेटेड, वो सब करना है। ठीक है। एंड इवन इफ इट्स स्टेट बेस्ड, क्योंकि फिर वही होता है, क्योंकि लाइक इट्स अ वेरी नोवेल फील्ड समवन इज डूइंग, तो नोवेल चीजें जो भी हो रही है वो सब करनी है, राइट। एंड बाकी विद टाइम अगेन यूल नो कि ये सब पूछते हैं, ये सब नहीं पूछते हैं, तो ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। एंड देन मंथन में जो टॉपिक्स कवर होते हैं, दोज आर रेलिवेंट टॉपिक्स ओनली, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं होता फालतू वाला। तो दोज टॉपिक्स आर। तो आप साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते जाते थे ना फ्रॉम व्हाट यू रेड एंड हाँ, ओके, आई बी ऑनेस्ट, इनिशियली मैं ऐसा नहीं करती थी, मुझे बाद में कैच अप करना पड़ा था। बट इट्स बेटर इफ यू डू साथ में, बिकॉज ट्रस्ट में फिर बहुत सारा करने का हो जाता है, फिर देन यू गेट लाइक ओवरवेल्म्ड, एंड फिर बहुत उसका ड्रामे अलग होते हैं। तो साथ साथ करके चलना। तो ऑन डेली बेसिस हाँ, डेली बेसिस, ओके थैंक या यू एटलीस्ट कौन से टॉपिक्स तो रख लो। हाँ कौन जी। से टाइम पीरियड का, लाइक क्लैट से 1 साल पहले से या क्लैट से 9 महीने पहले से, लाइक आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि अब मैं भूल चुकी हूँ। आई थिंक कुछ यू नीड टू नो लाइक, आई थिंक 1 ईयर पहले तक का, आई थिंक। हाँ ना, हाँ। 1 year. 1 ईयर पहले तक का, हाँ, 1 ईयर But पहले if तक they का। if they will ask, we can't deny, no, we can't go and हाँ, protest. एग्जैक्टली So तो one time मतलब it's वन fine. पॉइंट फाइव ईयर्स तक का तो कर ही लो। Yes, yes. हाँ। Hello. I wanted to ask you, how did you prepare for English? Like, did you read any extra books or something? Any particular authors? ए, नहीं, मतलब ऐसे ऑथर बेस्ड बुक तो नहीं पढ़ी मैंने, लाइक अगेन ऐसा अगर आपको रीडिंग का शौक है तो देन यू कैन रीड बुक्स, दैट हेल्प्स इन रीडिंग स्पीड डेवलपमेंट ऑब्वियसली। बट देन द थिंग इज, जो बुक्स तुम पढ़ रहे होगे उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो तुम इसलिए ज्यादा जल्दी पढ़ोगे। पैसेजेस तुम्हारे इंटरेस्ट के बेस पे तो आते नहीं है, वो तो रैंडम चीजें आती है। तो वो वाली चीज प्रैक्टिस करने के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अगेन एडिटोरियल भी रैंडम टॉपिक्स पे आते हैं, तुम्हें उसका कुछ नहीं पता होगा, तब भी पढ़ो, यूल गेट टू नो न्यू थिंग्स। एंड सेकेंडली, रीडिंग स्पीड में भी हेल्प करेगा। सेट अ टाइमर कि मैं कितनी देर में पढ़ पा रही हूँ, देन ट्राई टू रिड्यूस दैट टाइमर बाय लाइक 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, ऐसे करके। एंड सेकेंडली अगेन, इंग्लिश के पैसेजेस यू रीड, उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो वट एवर, like one thing, like from day one, whatever passages, marks, whatever you are doing, बिना टाइमर के मत करना। अगर वो बिना टाइमर की आदत पड़ गई ना, तो वो आदत हटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो टाइमर के साथ ही करना, उसी से स्पीड डेवलपमेंट। reader, if you're a non-reader, तो उसके लिए how can we go about? Because reading skills are really required in this. So how can you develop the reading skills if you're a यार non-reader? देखो, इफ यूर अ नॉन रीडर, तो पहले तो स्टार्ट रीडिंग थिंग्स यू आर इंटरेस्टेड इन। इसमें थोड़ा उल्टा चला जाएगा, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट, बिकॉज यू शुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग, नॉट रीडिंग समथिंग यू लाइक। तो पहले तो स्टार्ट विथ थिंग्स यू लाइक टू रीड, स्टोरीज, बुक्स, हैरी पॉटर पढ़ लो, या वट एवर यू लाइक टू रीड, है ना। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अगेन वो तो पढ़ना ही है, सो वो तो होमवर्क की तरह ले लो कि वो तो करना ही है। तो रीडिंग की हैबिट तो डेवलप करनी पड़ेगी। एंड आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, अभी कॉलेज में आके भी देयर टू मच टू रीड। तो लाइक अभी क्लैट दे रही हूँ और लॉ प्रोफेशन में जाना है, तो रीडिंग इज अ कांस्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ। हम मेरी भी अभी 3-4 रीडिंग करनी अभी बची है, तो मैं भी वो जाके करूंगी। सो रीडिंग रीडिंग तो बहुत है, तो ऐसा तो रीडिंग हैबिट तो डेवलप करनी पड़ेगी। वो अब आप बुक से करो पहले, तो उसके बाद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसी से रीडिंग की आदत आएगी। Okay, thank you. And how did you revise your GK? Like monthly basis पे, like यार अभी जी, हम्म, फिर सो मार्च जीके, हाँ हाँ हाँ, सो लाइक यू कैन डू मंथली ऑल्सो, जैसे कंपेंडियम्स आते हैं, राइट। तो मंथन ही, एक मंथली मंथन भी आता है, तो वो पढ़ लो, उसमें रिवीजन हो जाएगा। अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, उससे रिवाइज करो। एंड लाइक व्हेन यू, सो यू कैन डू दिस कि मंथन पढ़ा, उसमें कुछ और अपने नोट्स पढ़े, कुछ मिस आउट लग रहा है दोनों में से, तो उसमें ऐड कर दो अपने नोट्स में। ये मंथन में एक्स्ट्रा है, ये मैं अपने नोट्स में ऐड कर देता हूँ, मैंने नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे करके रिवाइज, एंड लाइक ट्राई टू डू लाइक अ वीकली रिवीजन रादर देन अ मंथली रिवीजन।
बिकॉज फिर ओवर द मंथ चीजें भूलने लगता है। तो वीकली रिविजन वुड बी ग्रेट। और अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा है तो यार अपने नोट्स से ही पढ़ लो, एटलीस्ट वीकली में तो, कि लाइक यू नो कि अपने नोट्स कितने हैं, तो दैट सीम्स लाइक अ डुएबल थिंग कि हाँ अच्छा ठीक है इतना मैं कर लूंगी आज। तो वीकली रिविजन फॉर जीके विद योर नोट्स Oh, एंड मंथली विद मंथली। thank you. I wanted to ask that you told that you didn't touch your school after your half yearly for the preparation of CLAT, but how were you able to do it? Because I am someone who can only study through classroom learning. It's very difficult for me to and like in 10th, I just promoted to 11th. When my half yearly were completed, there was a very huge portion of syllabus which was left. So how were you able to do that? It's thinking even is quite So impossible for me. हाँ, ओके ओके, आई गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो द थिंग इज, मुझे ऐसा ज्यादा मैं स्कूल पे डिपेंडेंट थी नहीं, मैं अपना खुद ही पढ़ती थी घर पे। इफ यूर लाइक कि मेरे को स्कूल से ही पढ़ना है तो यार आई थिंक 12th ग्रेड में तो टीचर्स भी सिलेबस जल्दी खत्म करवाने पे लगे होते हैं। लाइक अक्टूबर तक सबके स्कूल में सिलेबस हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि फिर नवंबर से दे स्टार्ट विद प्री बोर्ड्स एंड स्टफ। मतलब एटलीस्ट हमारे स्कूल में ऐसा था, आई डोंट नो अबाउट योर पर्टिकुलर स्कूल सिस्टम। एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यार क्लासरूम लर्निंग से ये हो पा रहा है, तो आई सजेस्ट कि स्कूल में ही पढ़ लो, घर पे आके पर फिर स्कूल का कुछ मत करना। राइट, सो लाइक कीप वट एवर लाइक 8 to 10 hours you're getting at home for just class, स्कूल मत ही करना उसमें। क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो तुम यार क्लास के बाद भी पढ़ सकते हो, बोर्ड्स के पढ़ने के लिए यू हैव लाइक 3-4 months। And what newspaper did you read for your preparation? Like any certain publication? I read Hindu। Okay, ma'am. Thank you. मैम नहीं दीदी हूँ मैं। I had one question, which was basically like during our mocks and everything. One thing which I like personally struggle with, which I think a lot of other people also struggle with, is time management. So a lot of, the time before I do the mocks chronologically. So I start with English and then, whatever the section, like I do it according to the paper itself. So by the end of the 2 hours, I almost end up like, missing the math section or some part of the logical reasoning section. And even up until like the legal aptitude section, I'm able to, match like a pretty good pace. But somehow by the end of like the 2 hours, I always end up missing a particular amount of sections just because of time management. So how did like manage your time during mocks and everything? तो इट्स नॉट अ कंपल्शन कि जिस ऑर्डर में पेपर है उसी ऑर्डर में करना है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू पर्सनली वाज आई स्टार्टेड विद द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन फर्स्ट। मेरा था वो लॉजिकल। तो मैं सबसे पहले लॉजिकल स्टार्ट करती थी, बिकॉज क्लियर हेड है, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आई कैन गो विद अ क्लियर माइंड टू डू लॉजिकल। मुझे पैसेजेस भी समझ आएंगे एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। लॉजिकल के बाद मैं लेती थी जीके का ब्रेक, बिकॉज लाइक अभी मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरे लिए डिफिकल्ट सेक्शन है, आई वांट समथिंग लाइट। जीके करके आई यूज टू गो टू लीगल। लीगल में भी क्योंकि इतना दिमाग नहीं चलाना है, जो पैसेज में लगा है उसको बस अप्लाई करना है। एंड उसके बाद मैं जाती थी इंग्लिश करने। इंग्लिश में क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। एंड फिर मैं एंड में मैथ्स करती थी, क्योंकि मैथ्स पर्सनली मेरा अच्छा था, तो मेरे को पता था कि मेरा हो जाएगा, तो मेरे को उस सेंस में वो नहीं था। सो आई सजेस्ट स्टार्ट विद द सेक्शन यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि यू नीड अ क्लियर ब्रेन व्हेन यू आर गोइंग टू दैट सेक्शन। उस सेक्शन का तुम्हें समझ में आना चाहिए। देन यू टेक अ ब्रेक फॉर जीके या मैथ्स, वट एवर यू आर गुड एट। उसमें अगर देखो जेके में कम टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा ब्रेक हो जाता है, या इफ मैथ्स इज गुड तुम जल्दी कर सकते हो तो मैथ्स पहले कर लो। एंड देन यू कैन अरेंज, पहले तुम्हें इंग्लिश करना है या लीगल करना है या वट एवर लॉजिकल करना है। सो यू नीड टू फिगर आउट। ये हिट एंड ट्रायल से आएगा, एकदम कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं है, सब अपने हिसाब से करते हैं। तो पैटर्न चेंज करके देखो मॉक्स में, सी इफ इट वर्क्स आउट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड देन यूल गेट अ सेंस कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, फिर वही पैटर्न फॉलो करना। Okay, and I had one more question, like specifically for GK, that is like a section that I like struggle a lot with personally because you never know, whatever could come. You don't know what's actually important. And again, like even just like studying the newspaper, I personally find it difficult to make notes side by side because you never know what's important and what's not. Like over time नहीं आएगा वो, but while actually in the moment तो नहीं समझ आएगा कि क्या important है. And it's like newspaper wali GK is very
dynamic, it's ongoing. So again, just adding on to whatever you're doing, like just organizing your notes and everything, and just that section as a whole is something I struggle a lot with. So how did you like study GK specifically? So ऐसा स्पेसिफिक कोई स्टडी मेथड नहीं है. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज न्यूज़पेपर पढ़ा. ऐसा नहीं है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और साइड में लिखती जा रही हूँ, वो नहीं करा है. व्हाट आई डिड वाज न्यूज़पेपर पढ़ के आई गेट कि क्या क्या टॉपिक्स है आज इन रेलेवेंट. नो द थिंग विद न्यूज़पेपर्स इज अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट चल रही है, सो इट्स नॉट लाइक कि एक ही दिन आएगी, वो रिपीट होती रहेगी. सो you'll recurrently see those things happening. तो एक तो उससे पता चलेगा कि हाँ ये रेलेवेंट चीज है, इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए. सेकेंडली, वट एवर टॉपिक्स यू हैव कलेक्टेड, उसके बाद जाओ गूगल पे, वो टॉपिक डालो, एंड कोई भी ऐसी दृष्टि आईएएस टाइप वेबसाइट खोल के उसमें ना तुम्हें रेलेवेंट मटेरियल ही मिलेगा. सो उससे तुम्हारी डायनामिक जीके और स्टैटिक जीके दोनों कवर हो जाए. तो उससे नोट्स बनाओ, ठीक है. एंड उसके बावजूद जो वैसा क्वेश्चन बेस्ड स्ट्रगल है, उसके लिए टॉक टू योर टीचर्स, दे विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी है क्या. एंड दे आल्सो टेल यू कि जीके एग्जैक्टली करना कैसे है. दे आल्सो टेल यू कि हाउ टू फिगर आउट द रेलेवेंट स्टफ, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू. तो वो सब तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल अगेन, it will come with experience. So I'm like, trust me, after some time you will develop this intuitive thing by yourself कि हाँ अच्छा ये ध्यान देना है, ये नहीं देना है. पर वो ना एकदम से अभी नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए. बट लाइक यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, अगेन सेम थिंग. Okay, thank you. नो प्रॉब्लम. मान्या, सॉरी इंटरप्शन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो तुमने 2 साल का प्रोग्राम किया स्पैन बैच में, और उसके बाद जहाँ भी करंट में हो, अगर पॉसिबल हो तो एक बार बच्चों को दिखाओ कि कैंपस कैसा दिखता है, क्योंकि ये वहीं जाना चाहते हैं. अगर रियर कैमरा तुम्हारा दिखा, उनको ट्राई करती हूँ एक सेकंड. फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे आगे. अभी तो मैं एम्फी थिएटर में हूँ. एम्फी थिएटर से वो आइकॉनिक एनएलएसआईयू वो तो दिख जाता है, वो दिखा दो. ये एम्फी थिएटर है. दिख- सो ये जो पिलर है वो एनएलएस वाला, इसके नीचे ये लाइब्रेरी है. अभी बंद है, वरना मैं फिर लाइब्रेरी में बैठ के सेशन ले रही होती ये वाला. या गाइस, यू कैन डू इट, आई ट्रस्ट इन यू. यू गाइस कैन कम हियर, इट्स रियली गुड. पढ़ाई वढ़ाई तो होती है, हर जगह होती है, बट वैसा एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा I think that's also important. We should be specific to the time also. Else, because maybe the dinner and all, Manya, done or है. it हाँ has to यस, be done? नहीं Done. अभी करना है सर, जाके अभी करना है ना जाके. तो हाँ. So obviously, mess and all timings are there. So can we have last 2 questions quickly? If you could share your routine, because I relate to you in being an early bird, and like it's 8 months left, so I'm little concerned about the routine. Yeah, so like you'll be in 12th, right? Yes, yes. So what I used to do was I woke up at like 5:30. ठीक है, 5:30 उठ के पहले थोड़ा सा टू लाइक हेल्प माय फोकसिंग एंड स्टफ, मैं थोड़ा मेडिटेशन टाइप करती थी. मतलब ट्राई टू डू इट, मेरा भी डेली का नहीं था, कभी मूड करा तो कर लिया वगैरह. फिर मतलब 5:45 तक आई सैट टू स्टडी. तो सुबह तो मैं स्कूल का होमवर्क खत्म करती थी, वो मैं पूरा शाम को स्कूल का कुछ होमवर्क नहीं करती थी. ठीक है, तो सुबह 5:30 to 7 होमवर्क खत्म करा. एंड उसके बाद देन गेट रेडी फॉर स्कूल वगैरह, पूरा प्रेप करके स्कूल जाती थी. स्कूल से आई यूज्ड टू कम बैक बाय लाइक 2:30. 2:30 to 3 लंच ब्रेक. ठीक है, उसमें टीवी देख लिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया. देन 3 o'clock आई यूज्ड टू स्टार्ट स्टडी. तो पहले तो स्कूल से रिलेटेड 3 to 5 या 3 to 6 आई यूज्ड टू डू स्कूल रिलेटेड एक्स्ट्रा स्टडीज, सेल्फ स्टडी. ठीक है, क्योंकि लाइक ऑब्वियसली बोर्ड क्लास थी तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा. एंड लाइक मैं जैसे स्कूल आगे जाके नहीं जा रही थी, तो वो मैं अपना खुद का सिलेबस कवर कर रही थी कि लाइक आई शुड नॉट रिलाई ऑन स्कूल. उसके बाद
और उस पीरियड में मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करी थी, हैंड रिटन फाइल्स, वो सब जो देनी थी वो सब। वेरी वेस्टफुल इफ यू आस्क मी, बट वट एंड उसके बाद 6 o'clock क्लैट रिलेटेड स्टडीज था। तो पहले तो जीके करती थी मैं, उसमें न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके टॉपिक्स के नोट्स वो सब बनाए। फिर 8 o'clock डिनर करा, सो लाइक 6 to 8 जीके हो गया। एंड देन 8 o'clock डिनर करके 8:30 से अगेन आई यूज टू सिट फॉर स्टडी। अब वो 8:30 से 10:30 या तो मैं मॉक देती थी, सो लाइक वंस अ वीक मॉक। बट लेकिन अगर ऑलरेडी कोचिंग में संडे को जो मॉक होता था वो हो रहा था, तो मैं तब नहीं देती थी अपने आप से मॉक। वो मैंने बाद पे लाइक आफ्टर सितंबर स्टार्ट करा था, वीक में 2 मॉक्स देना और वो सब। उससे पहले तक आई यूज टू गिव ओनली 1 मॉक जो क्लासेस में होता था। अदरवाइज 8:30 to 12 o'clock में सेक्शनल्स करती थी। लाइक आई सेड, मेरा लॉजिकल रीजनिंग वीक था, सो लाइक एटलीस्ट 5 to 6 पैसेजेस ऑफ लॉजिकल डेली को। उसके बाद वो करके उसका 1 घंटा एनालिसिस में लगता था, क्या गलत करा, क्या गलती हुई, ये सब। फिर वो डाउट्स इकट्ठे करके रख लेती थी मैं, कि कि अभी हिमांशु सर से अपॉइंटमेंट बुक करूंगी, फिर टीचर के पास जाके पूछूंगी और ये सब वो सब। तो उसमें टाइम लगता था। उसके बाद फिर बाकी लीगल और इंग्लिश करती थी मैं। और मैथ्स लाइक आई सेड मेरा ठीक ठाक था, तो मेरे को इतना वो मैथ्स करने की जरूरत नहीं थी, मे बी लाइक 1-2 पैसेजेस अ डे। तो फिर 8:30 to 12 वो पढ़ाई चलती थी मेरी। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में ब्रेक नहीं लेती थी, इट्स नॉट लाइक कॉन्स्टेंटली 8:30 to 12 पढ़ ही रही हूँ मैं, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए एटलीस्ट। बीच में लाइक 5-10 मिनट का ब्रेक, यू नीड टू गिव योर आईज अ रेस्ट ऑल्सो। तो ऐसा। So you studied all the subjects every day. सॉर्ट ऑफ, मतलब आई ट्राई टू, बट देन अगेन वट एवर वर्क्स, राइट। तो मेरा जैसे नियरर टू द एग्जाम आफ्टर सेप्टेम्बर, लाइक आफ्टर आई स्टॉप गोइंग टू स्कूल, तो उसमें तो सारे सब्जेक्ट डेली करने ही थे, बिकॉज लाइक टाइम है मुझ पे करने का, सो व्हाई नॉट। ठीक है, उससे पहले तक लॉजिकल वाज माय फोकस, बिकॉज लाइक आई सेड इट वाज वेरी वीक, लाइक हाईली वीक इन लॉजिकल। तो मेरा लॉजिकल पे फोकस ज्यादा था। कभी कभी मुझे लगता था कि अच्छा मेरा लीगल भी डाउन जा रहा है या मेरा इंग्लिश भी डाउन जा रहा है, तो थोड़ी प्रैक्टिस उसकी भी करनी है। तो ट्राई टू बैलेंस आउट, बट देन फोकस ऑन वट एवर यूर वीक ऑन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो अच्छा हो रहा है तो बाकी सब्जेक्ट तो अच्छे चल ही रहे हैं, तो लाइक यू नीड टू गेट मार्क्स। वो मार्क्स आएंगे जब आपका वीक सेक्शन बेटर होगा, राइट। Ma'am, I wanted to ask that how did you analyze your mocks? Like, I'm in grade 11th, like currently promoted to grade 11th, so I haven't started giving mocks yet. But I wanted to know, I wanted to have some advice on how did you analyze your mocks and how many mocks did you give before the actual real deal, the real exam? या सो लाइक आई सेड, एक नोटबुक बनाओ एंड उस नोटबुक में मेक कॉलम्स, लाइक आई मेड 3 कॉलम्स। तो फर्स्ट कॉलम वाज किस टाइप का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉलम वाज क्या गलत हुआ, मैंने ऑप्शन गलत चूज करा, या मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, या मैंने मतलब लाइक दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, क्वेश्चन गलत पढ़ा या ऑप्शन गलत चूज करा। एंड देन थर्ड कॉलम वाज द रीजन, कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। सो नाउ यू विल हैव टू गो बैक, कि मॉक देते टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कि मेरे को अच्छा ये वर्ड ही नहीं समझ आ रहा था, इस वजह से मैंने ऑप्शन गलत चूज करा। या वो क्वेश्चन पढ़ते में मैं केयरलेस हो गई, मैंने नॉट तो पढ़ा ही नहीं कि नॉट एन आर्ग्यूमेंट, तो वो उस वजह से मेरा गलत हो गया। या फिर कि मुझे पैसेज में ये पार्ट ही नहीं समझ आया, या मैंने पैसेज में ये चीज देखी ही नहीं, मैंने अपने मन से आंसर कर दिया जो मुझे पता था। वट एवर रीजन, लाइक यू नीड टू फिगर आउट कि क्यों गलत हो रहा है। एंड देन ओवर टाइम यू सी अ पैटर्न, कि इस टाइप की क्वेश्चंस में मेरी ये गलती हो रही है। फिर वो जाके टीचर से पूछो कि मैम इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, या सर मैं क्या इसका रेजोल्यूशन करूँ, हेल्प मी आउट, ये सब। एंड मॉक्स में तो इनिशियली तो मैं भी वंस अ वीक ही देती थी, जो भी सीएल में मॉक्स होते थे। टुवर्ड्स द एंड, लाइक आफ्टर सितंबर, आई स्टार्टेड गिविंग ट्वाइस अ वीक, ठीक है। तो एक तो जो कोचिंग में मॉक हो रहा है वो, और एक खुद से पहले का मॉक उठा के कर लिया ऐसे। In grade 11th or 12th? 12th। 12th, okay. हाँ हाँ, ठीक है। And how many total mocks did you give before the exam? I wanted to know that. ऐसे मैं काउंट करके कैसे लाइक बताऊं मुझे। अप्रॉक्सीमेट कितना दिया होगा, क्योंकि मैंने YouTube पे भी मतलब जब आई वाज डूइंग माय रिसर्च, सो आई सॉ अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट यू नीड टू अटेम्प्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मॉक्स, या इतने मॉक्स करके जाओ, इतने मॉक्स करके ही जाने हैं। Closer to तो 50 ऐसा minutes. वो, Closer to हाँ 50. मतलब
50 हाँ होगा, Closer to 50 से तो ज्यादा ही हो गए थे सर, 50 ज्यादा ही होगा। बट हाँ मतलब मैंने तो 2 साल करा था ना, तो हम्म 50 से तो ज्यादा मॉक्स हो गए थे। बट ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि इतने मॉक करने ही है। बी लाइक कि मेरे को एक हफ्ते में इतने मॉक करने हैं, वो बना के चलो। ऐसे काउंटिंग वाउंटिंग से नहीं होगा, फिर तो तुम अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाल। ओके। okay. Thank you, ma'am. हाँ यस दीदी एंड दीदी नाउ दीदी। तो this what we want, yeah, मान्या, मुझे लग रहा है कि 1 hour ऑलरेडी हो गए और एंड कुछ क्वेश्चंस है तो आई डोंट माइंड आस्किंग, और यू गाइस कैन गेट एंड माय नंबर फ्रॉम हिमांशु सर और एनीवन लाइक, एंड आई डोंट माइंड बीइंग ऑन चैट आल्सो, इट्स फाइन। लाइक अगर मैं अभी प्रेप करना स्टार्ट करती हूँ सीरियसली मॉक के लिए कि मेरे को अभी से करना है, क्योंकि मैंने नवंबर से ज्वाइन किया था, तो मतलब अभी मैं 3 महीने, टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट सीरियस क्लैट को लेके कि सच में ही करना है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे 3 महीने दिए थे कि अगर आपको करना है या नहीं करना है। तो अगर मैं अभी एकदम serious वाला प्रेप स्टार्ट करती थी, मुझे अभी करना ही है क्लैट ही, दैट लास्ट ऑप्शन मेरे लिए बचा हुआ है, आई हैव टू डू दैट, तो मैं अभी से क्या पहले पढ़ूं, मतलब हाउ डू आई कवर ऑल ऑफ दैट। मतलब अभी you're in 11th or 12th? राइट। 12th में। सो आइड से कि एक तो जीके करना स्टार्ट कर दो, लाइक इमीडिएटली स्टार्ट विद जीके, एंड देन start reading the concepts, क्योंकि I don't think if you have just started so you won't know कि legal में क्या concepts है, logical में क्या है, वो सब। एक बार वो theory clarify कर लो, your teachers will help, your peers will also help जो already पढ़ चुके हैं ये सब। वो एक बार करो एंड उसके बाद start with your practice sections, even if अभी theory complete भी नहीं हुई है तो फटाफट वो करो। So like take like a 2-3 weeks to get this all theory done with, एंड बी रेगुलर इन मॉक्स। कोई बात नहीं, अभी इनिशियली नंबर नहीं आएंगे, इट्स ओके, यू लर्न फ्रॉम दैट, राइट। वो अभी के 20-30 नंबर देख के उसमें डिसअपॉइंट नहीं होना कि अरे क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। इट्स फाइन, ओवर टाइम बढ़ेंगे नंबर, व्हेन यू लर्न थिंग्स यू गेट टू नो क्या करना है, इट विल हेल्प। सो स्टार्ट विद जीके फर्स्ट, एंड सेकेंडली स्टार्ट विद थ्योरी, एंड उसके बाद अपनी प्रैक्टिस और मॉक्स में तो रेगुलर रहना ही। इट्स डूएबल, इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग, हो जाएगा, इतना भी टाइम नहीं है। और वो जो बुक्स जो सेंटर से दी हुई है, तो मतलब उनको पूरा खत्म कर दूं अगर मैं पढ़ सके तो फिर वुड दैट वर्क, एंड तक हाँ कर मतलब खत्म हो जा रही है तो कर लो, ऐसा नहीं है कि खत्म ही कर लेनी है। 3 हफ्ते में कितनी किताबें खत्म कर दोगी तुम, ठीक है। मतलब एटलीस्ट लगभग 1 मंथ का टाइम हाँ तो है ना हमारे थ्योरी पोर्शन तो कवर कर ही लो, ठीक है, एंड वो थ्योरी के साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कर लो। वो वाले क्वेश्चन यू कैन रिविजिट ऑल्सो। ऑल्सो एक टिप देती हूँ, बुक में मार्क मत करना आंसर्स, अलग से शीट ऑफ पेपर पे करना, ताकि यू कैन गो बैक टू दोस क्वेश्चंस एंड डू देम अगेन, क्योंकि वो आंसर होंगे ना तो फिर क्वेश्चन नहीं किया जाता वो। पास। दीदी एज यू मेंशनड कि जीके रिवाइज करनी होती है, जैसे आपने वीकली और मंथली दोनों बोला था, तो मतलब वीकली वाली करेंगे तो वीकली मंथन आता है। सो लाइक वो आता है जैसे थर्सडे फ्राइडे को ही आता है, जैसे अभी लास्ट वीक का फ्राइडे को आया था मंथन वीकली वाला, तो यू कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट फ्राइडे। तो फिर उसको मतलब रिवाइज कब करें जीके रेगुलरली कि वो दिमाग में तो लर्न होती जाए जितना भी स्टैटिक पार्ट होगा थोड़ा सा। हाँ तो वही ना कि नोट्स जो बना रहे हो वो नोट्स से रिवाइज करो। सो सो लाइक मंथन करा, मंथन में देख लिया अच्छा मेरे नोट्स में ये सब नहीं है तो मैं ये ऐड कर देती हूँ, ठीक है। वो टॉपिक भी हो सकता है, वो किसी टॉपिक में पॉइंट्स हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो तुम्हारे एक जगह तुमसे कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है, वही चीज रिवाइज करते रहो। सो लाइक एवरी वीक यू ओपन योर नोटबुक, फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो पहले का भी याद होता रहेगा और अभी का भी रिवाइज करते रहोगे, राइट। सो बट रिविजन विल मतलब वर्क जैसे दैट। आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे जब क्लैट का पेपर हुआ था लास्ट, क्योंकि लाइक मेरे को पता वरुण सर ने बताया था मतलब कि उसके बाद जो शुरू कर देना है। सो आई स्टार्टेड विद नोट्स, तो वो तब से दिसंबर से बना हुआ है। तो इफ आई स्टार्ट डूइंग इट तो फिर तो वो हाँ इट विल हाँ बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, तो इसलिए आई वाज आस्किंग कि कितना टाइम में करना चाहिए रिवाइज, क्योंकि वो भी करना ही है, तो उसको मैं कितने कितने टाइम में करती जाऊँ, टाइम पीरियड गैप कितना होना चाहिए। यार देखो, पहले तो जो वीकली रिवीजन कर रहे हो वो जो करंट मंथ है उसका करो, ठीक है। जो मंथली रिवीजन होगा वो पूरा शुरू से, ओके। तो लाइक अभी जैसे मार्च चल रहा है, अभी सेकंड नहीं थर्ड वीक स्टार्ट हो गया, राइट।
तो अभी थर्ड वीक, अभी जब अगर मैं आज रिवीजन करने बैठूंगी तो मैं 1 मार्च से लेके अभी तक की वो सारी जीके रिवाइज करूंगी. ओके, एंड देन मार्च एंड होगा, एक दिन स्पेसिफिकली फिर सिर्फ जीके के ही रखो कि उस दिन मुझे सिर्फ जीके करनी है, उसमें मैं पूरी जीके शुरू से लेके अभी तक की रिवाइज. ओके. ठीक है. मतलब कितने टाइम पहले क्लैट से आपको स्टॉप किया, अब बस जीके रिवाइज करनी है, आगे की नहीं पढ़नी? I think it's like a 10-day period, 10-15 days. So like अगर December first week में CLAT है, so you can stop by like November 25. Thank you so much. आप नोट्स कहाँ से बनाते थे जीके के? तो like I said, पहले टॉपिक्स ढूंढो, फिर वो टॉपिक्स जाके ना गूगल पे डालो, उसमें फिर वो IAS वेबसाइट सर्च करना, उस पे आती है इन्फॉर्मेशन. उसके बाद फिर मंथन खोलो, मंथन में जो एडिशनल चीज है वो ऐड करो. तो वो like Google and Manthan, those are the two things GK के notes के लिए. Okay. I want from the group itself, someone should pay a vote of thanks. Who wants to come forward for this session, for the timing, for the learning? Who wants? Any one of you, please. सब पूछ ले, थैंक यू बोलने वाला कोई नहीं है क्या ऐसा? Thank you. It was very informative और बहुत inspirational लगा मुझे तो. And I loved that NLS tower. Like मेरी इतनी inspiration है, अभी मेरी table के आगे भी वही है. So I enjoyed this session. I've noted down everything that you mentioned. Thank you for this guidance. Thank you. I'm glad I was able to help. Great. Same here. Thank you so much. Greece, sir, I think your words of just collated. Sir, I cannot explain it in words because normally what happens is when you see normally orator, but this was such a practical session, everything came from heart. Every time she kept repeating, this is the way I used to do. This may not fit your bill, but this is the best way. You have to figure it out for yourself. So very, very practical approach, and I think it was a very lively session. These kind of sessions, if are repeated, will go a long way in everybody to get understanding on what needs to be done and how it needs to be done. Manya, I really want to thank you. You are a very level-headed individual. The way you have explained is simply super. God bless you, bache. Thank you, sir. Thank you so much. Great. Thank you very much. Thank you, Himanshu, to connecting Manya to us. And obviously, Manya is a part of us. Once somebody has studied with us, we say you remain a part of our system and we keep cherish your success and all. But yes, it is important for us to be connected. Himanshu is the one kadi hum log ke beech mein. He keep connecting and all. But yes, thank you very much. Thank you all for attending. And it was like superb session because of your participation. Many times happen, somebody is joined and then somebody spoke, but nobody asked question. Then it will become very difficult. So I think the participation voice also, it was great. Thank you. Thank you, everyone. Have a Thank you, sir, for having me here. best, Even I best. enjoyed talking a lot. Thank you. Thank you, everyone. Okay, Thank you, best Manya. wishes all. Thank you, sir.